Students, today we are going to do extra questions of chapter polynomial class 9th. Now my first question is, if a square plus b square plus c square is 20 and a plus b plus c is equals to 0, find ab plus bc plus ca. This is a very important question. Student, what you have to do, you have to check which identity is going to be used here. Since a square, b square, c square is given to you and a plus b plus c is given to you and you have to find a, b, b, c and ca. That means you have to identify that identity which is containing these terms. And the identity is a plus b plus c का whole square. That is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This is the identity from where we can find these terms. Now, in this given is a plus b plus c is 0. Now, this is 0, so you can put it like this. 0 ka whole square. Now, a square plus b square plus c square. This is again given to be 20. Okay? Now, in 2a, 2b, 2b, we can take out common 2 and it can be written like this. ab plus bc plus ca. Now see, this becomes 0 because 0 ka square kya hoga? 0. Now this is 20 plus 2. What you have to find out? You have to find out this thing. Now ab plus bc plus ca. 20 can be shifted here. It becomes minus 20 because here the positive sign, it is transposed to the LHS. It becomes minus 20 and it is like that AB plus BC plus CA. Or we can write, now this 2 is transposed on another side, then it divides. So it becomes AB plus BC plus CA. जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Divide, and 2 ones are 2, that is minus 10. So what is the answer? AB plus BC plus CA is equals to minus 10 is my answer. So in this question, first you have to identify which identity is going to be used. So what you have to think that terms a square, b square and c square is equals to 20 and a plus b plus c and this term is used in which identity. So I easily recognize it because these terms are contained in this identity and we are putting the values a plus b plus c. Here the a plus b plus c is equal to 0. We put a plus b plus c is equals to 0. Now in place of a square plus b square plus c square, value is given to be 20. So I write value of a square plus b square plus c square is 20 and plus यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. Take out 2 common. When I take out 2 common from this, the term lies left with me is this. Now this and this terms are same. That means ki question is asking about how to find this. Then start transposing the term. 20 should transpose this side, so it becomes minus 20. Then 2ab plus bc plus ca. Now जब 2 को transpose करेंगे तो it divides 20 and then it becomes minus 10 and this is my required answer. Now moving towards the question number 2. Now the question number 2nd is, if a plus b plus c is equals to 9 and ab plus bc plus ca is equals to 40, find a square plus b square plus c square. So student, आप देख रहे हैं कि this question is very much similar to the first one because we are going to use the same identity. The identity is a plus b plus c का whole square, that is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. In first question, what you have to find out? You have to find out ab plus bc plus ca. Now in this case, this is given to you and what you have to find out? A square plus b square plus c square. So in place of a plus b plus c, we can write 9 ka whole square because the value of a plus b plus c is given to you, and a square plus b square plus c. This time I have to find out this thing, a square plus b square plus c square. Now again take out 2 common, ab plus bc plus ca. So what 9 9s are 81
Here we can write a square plus b square plus c square. Now in place of ab plus bc plus ca is equals to 40, I can write 40. Now a square plus b square plus c square plus 2 4s are 80. Now this is 81. I can shift, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव. तो आई विल गेट a square plus b square plus c square is equals to 1. So answer is very simple. So student, आपको पता होना चाहिए कि which identity is used. So question is very simple, but you should practice lot of extra question on this. Now we are going to do the question number 3, which is similar to this one, but now question number 3 is, if a square plus b square plus c square is equals to 250 and ab plus bc plus ca is equals to 3, then find a plus b plus c. This is the third question on the same identity we are doing, that is a plus b plus c ka whole square. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Now in this question what is given, a square plus b square plus c square is given. इसकी जगह मुझे क्या दे रखा है, 250. Now ab plus bc plus ca, I have to take out common. Now I can write like this, 250 plus 2 into, इसकी जगह पे क्या लिखना है मुझे, 3. Now मुझे फाइंड आउट क्या करना है, a plus b plus c फाइंड आउट करना है. तो इसको कर देते हैं ऐड, 250 plus 2 3s are 6, it becomes 256. Now a plus b plus c, जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में. ना तो आई नो दैट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 16. तो प्लस माइनस 60 इज द आंसर ऑफ दिस question. So student, we have done 3 questions based on this identity. In each 3 question, sometime this is given to you and this is given to you, you have to find this one. And in sometime if this and this is given to you, you have to find out this one. And then this question, these 2 terms are given, then you have to find out this one. So you have to recognize which identity is going to be used. Hope so. These questions are easily understandable to you. Now moving towards the next variety. Now moving towards question number 4. This is a very important question. If x plus 1 by x is equals to 7, find the value of x cube plus 1 by x cube. Student, again first you have to recognize which identity we are going to use. Since we have to find x cube plus 1 by x cube, that means we have to use the identity a plus b का whole cube, because in the expansion of a plus b whole cube we get a cube plus b cube. Now here the term given 1x upon 1 by x is equals to 7. So cubing both side, हम क्या करेंगे, cubing both side, दोनों तरफ क्या कर देंगे, cubing कर देंगे. Cubing का मतलब क्या होता है, like this 1 by x whole cube is equals to 7 का whole cube. Now x plus 1 by x whole cube, that means a cube plus b cube plus 3ab into a plus b is equals to 343. 7 का क्यूब कितना होता है, 343. Students, you have to find out x cube plus 1 by x cube. Here this is to be find. ये मुझे निकालना है. अब देखिए कैसे निकालते हैं. इसको तो मैं यहीं रखती हूँ, जो मुझे निकालना है वो मैं यहीं रखूँगी. Now 3x से x कैंसिल हो गया. Now 3 into x plus 1 by x. What is the value of x plus 1 by x? We have 7. So it can be written like this, 343. तो ये आ गया x cube plus 1 by x cube is equals to 3 7s are 21 is equals to 343. Now x cube plus 1 by x cube is equals to 343. इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, ये आ जाएगा 3 में से 1 2, it's 322. So what is the answer? Answer is 322. Again
this is a very simple question. Hope so this is easy. Question is x plus 1 by x is equal to 7. You have to find out x cube plus 1 by x cube. Now हमने ये देखा कि which identity is going to be used here. So cube निकालना है तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब. अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ये ना पूछा, ऐसा पूछा होता एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालो, तो आपको दोनों तरफ क्यूबिंग के बजाय क्या करना होता, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता. बट इन माई क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड आउट द क्यूब. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दिया. तो यहाँ पे मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 343. अब आपने यहाँ से x को कैंसिल किया तो x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 7, 3 7 21 और उसको ट्रांसपोज कर दिया. So you will get the value x cube plus 1 by x cube is equals to 322. Hope so this question is clear. Now moving towards the next question. Now the question number 5 is, it is similar to the previous one. If given that x minus 1 by x is equals to 3, then find the value of x cube minus 1 by x cube. Since again I have to find out x cube minus 1 by x cube, that means what procedure is going to be followed, that cubing both side. Now solution is x minus 1 by x, आप लिखेंगे, I should write like this, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा नीचे हो जाता है ये. Since x minus 1 by x is equals to 3, that means cubing both side. आप दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड. तो क्यूबिंग करेंगे तो आ जाएगा x minus 1 by x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का होल क्यूब. नाउ दिस बिकम x क्यूब minus b cube minus 3 into 1 by x into a minus b, and 3 का cube is 27. Now what you have to find, you have to find this much x cube minus 1 by x cube. रेस्ट ऑफ द टर्म को सॉल्व करिए. 3 इंटू, अब ये गिवन है मुझे, ये कितना है, दिस इज गिवन टू मी x minus 1 by x is given to me 3, so it can be written like this. Now x cube minus 1 by x cube, 3 3s are 9, 9 is equals to 27. So क्या आ जाएगा यहाँ पे, x cube minus 1 upon x cube is equals to 27 plus 9. तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 7 16, 36. So x cube minus 1 by x cube is equals to 36. This is my answer. Again, also this is a very similar question. Now moving towards the next variety of this. Now moving towards question number 6. Again, this is a very important question because this is little bit different from the previous one. Because in this question, x square plus 1 by x square is 7, and what you have to find, you have to find that x cube plus 1 by x cube. Now since x square plus 1 by x square and x cube, वो दोनों में से कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है, x square और इसका कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि we don't have any formula जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हों. तो हमें क्या करना होगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. तो हाउ टू कनेक्ट, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये किस आइडेंटिटी में आता है, देखिए, अगर मैं आपके पास इसकी आइडेंटिटी लिखूँ x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स. ठीक है, ये आपको समझ आई मेरी बात. हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया. ठीक है, अब देखिए, जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो मुझे क्या मिला, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए, गिवन क्या है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7. आई राइट 7. इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 7 प्लस एक्स से एक्स कटा, ये आ गया 2. नाउ एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. सो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल गई, एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू रूट 9. ठीक है, तो रूट 9 का मतलब क्या हो गया, 3. अब ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है, कितनी, 3 मिल चुकी है. अब देखिए, अब मैं यहाँ से यहाँ पे जा सकती हूँ. वाई, जब मैं इसकी क्यूबिंग करूँगी तो क्या होगा, ठीक है, जब मैं इसका क्यूब और यू कैन राइट लाइक दिस, यहाँ पे आप ऐसे लिख लें, ऐसे ना करें, राइट लाइक दिस. ये था 3 का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर था, स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो ये वैल्यू 3 आ गई. क्योंकि अगर हम रूट में लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा. तो सॉल्व इट लाइक दिस. तो x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3 आ गया.
ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, अगर 3 आया मेरे पास, अब मैं यहाँ से यहाँ बड़े आसानी से जा सकती हूँ। वो कैसे? बिकॉज मुझे इसका क्या करना है, क्यूबिंग करना है। तो चलिए आइए क्यूब करते हैं। सिंस वी हैव x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3, क्यूबिंग बोथ साइड। जब मैं क्यूबिंग करूँगी तो व्हाट आई विल गेट, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब। सो x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 27। नाउ ये और ये कैंसिल हो गया। सो x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27। सो देखिए आसानी से आपको वैल्यू मिल गई क्या, 27 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 24। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो देखा आपने क्वेश्चन में गिवन क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7। हम यहाँ से कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद हमने इसको क्यूब कर दिया और वैल्यू निकाल ली कितनी, 24। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन दिस केस दे डोंट हैव एनी लिंक, बट वी हैव फाइंड द लिंक एंड सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया, बिकॉज हमने लिखा a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, मैं लिखना ही भूल गई। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, माइनर से गलती होगी क्योंकि जल्दबाजी में शायद फॉर्मूला हमने आधा लिख दिया। दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 27। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा देखिए, 3 इंटू ये कट गया, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3। मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ये आ गया 27। तो यहाँ पे आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 27। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 27 माइनस 9। तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, सो 18 इज द आंसर। तो देखिए जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन शुक्र है नज़र पड़ गई मेरे यहाँ पे। सो व्हाट इज द आंसर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 18. Hope so this question is clear to you. Now moving towards the next question. Now question number 7 is similar to the previous one, so try to understand that. Again we have given x square plus 1/x square is equals to 83, and the question is how to find the value of x cube plus 1/x cube. So there is no link between these two. We have to find out the link. How to find out the link? First इसका हमने वैल्यू क्या निकालनी है, x प्लस 1/x तक पहुंचना है। तो क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देखिए, आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन क्वेश्चन के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी उसको यूज़ करने के लिए मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि मुझे इसकी तो वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये वैल्यू पता है, क्या है, 83। सो 83 प्लस ये और ये कैंसिल हो गया 2, तो ये कितना आ गया, 85। नाउ x प्लस x का होल स्क्वायर, ये 83 है तो ये आ गया 85। नाउ अब ये इधर 85 तो किसी का रूट होता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, लेट मी चेक इज देयर एनी मिस्टेक। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक ऐसी वैल्यू बननी चाहिए थी जो कि स्क्वायर रूट हो, बट ऐसा बन नहीं रहा है। देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेट मी चेक द क्वेश्चन, इज देयर एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि हमें ये बोला गया है x माइनस 1/x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है आपने, ठीक है। सो ये मिस्टेक होने की वजह से एक मिस्टेक क्या सामने आई है कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी पॉजिटिव की नहीं नेगेटिव की निकालनी है। वाई? क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया माइनस, तो इसका मतलब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x माइनस 1/x की चाहिए। तो मुझे अपने इस वैल्यू को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी तो मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं गलती है। तो वो गलती पकड़ने के लिए मैंने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में मिस्टेक थी,
ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए 83 माइनस 2 दिस बिकम्स 81। नाउ आई नो 81 किसका स्क्वायर होता है, तो किसका स्क्वायर होता है 81, एक बार फिर से देख लें। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सिंस गिवन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 83, लेकिन मुझे निकालना क्या है एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। तो मैंने आइडेंटिटी किसकी लगाई, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की लगाई। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखेंगे वहाँ पे यही ऐसा ही कुछ गिवन था, बट यहाँ पॉजिटिव था। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो डिपेंड किस पे करेगी, दिस वैल्यू पे। अगर तो वहाँ पे नेगेटिव है तो आप नेगेटिव की आइडेंटिटी लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लगाया, तो ये वैल्यू 83 के इक्वल लिख दी, ये x और x कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 83 माइनस 82 इज 81। नाउ आई नो दैट दिस कैन बी रिटन एज 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 9, ये वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब, तो मैं क्या करूँगी, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, क्यूबिंग कर देंगे। तो इसकी क्यूबिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 9 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू 729। ठीक है, 9 का क्यूब कितना हो गया, 729। नाउ अब मुझे ये चीज़ चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये मुझे चाहिए, x से x कैंसिल हो गया, सो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू, इसकी जगह पे मैं क्या रखूँगी, x माइनस 1 बाय एक्स की जगह पे अभी मैंने निकाला है ये 9 के इक्वल है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 729। तो ये कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3 9 27, 729। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे माइनस की 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 729 प्लस 27, तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 7 16 का 1, ये आ जाएगा 756 इज द आंसर। होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को रिवाइंड करें और देखिए।